Hello and welcome to All Indians Matter. I'm Ashraf Engineer. It's rare, but every once in a while you come across a book that you hadn't heard of before, which you pick up on a lark and it simply blows your mind. It delights you, saddens you, angers you, but more than anything else, it embraces you and carries you along as it flows. I didn't know much about City on Fire, a boyhood in Laligarh, and I didn't have any expectations from it. After all, so much has been written about the communal fault lines in India, especially since 2014, and I wondered whether there was anything new left to say. But City on Fire proved to be different. It's a memoir of a boyhood spent in Aligarh, and it's an emotional roller coaster. It talks about the pains associated with growing up, of joy and grief and loss and evolution. But I think its greatest success is in portraying how the relationship between Indian Hindus and Muslims ebbs and flows, at once symbiotic and conflicting. It's easily one of the best, most insightful books I've read in the past few years, and I'm delighted to have its author on this show. All Indians Matter. Ziad Masroor Khan is the author of City on Fire and is a journalist and writer based in New Delhi. The book, published by HarperCollins, was the winner of the Best Nonfiction Jury Award at the Crossword Book Awards 2024. In a decade-long journalistic career, Ziad has worked with national and international media publications like Reuters, Vice, Brut, and Deccan Herald. 3 of his documentaries have been screened at international film festivals. In 2021, Ziad was the recipient of the South Asia Speaks Literary Mentorship for Outstanding Emerging Writers from South Asia. Ziad, welcome. कैसे हैं? Really, I'm really happy to be here, Ashraf. We're very, very happy to have you on the show too, Ziad. So, Ziad, let's dive right in. First of all, congratulations on the book. And how did the idea come about and how long did it take you to write it? So the idea came in around 2015. मैं रॉयटर्स के लिए काम कर रहा था उस टाइम पर. तो मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, नियाज फारूकी. he had written his book. तो लाइक ऐसा होता है कि अगर कोई आपके करीबी अगर कोई एक किताब लिखता है तो आपके अंदर भी एक ऐसी होप आ जाती है कि मैं भी कर सकता हूँ. तो मेरा आइडिया मेरे दिमाग में तब से था कि 2015 से. फिर काफी काफी दिनों तक मैं इसको नोट्स बनाता रहा कि जब मेरी किताब आएगी तो मैं ऐसे इसमें ये वाली बात डालूंगा, वो वाली बात. तो लाइक इट्स काफी लाइक आई kept making notes for around 5 years. And so it was when in 2020, when the pandemic came, there were Delhi riots. And after the Delhi riots and during the pandemic, there was so much witch hunting. Like media just lost everything. Like तबलीगी जमात, like कोविड जिहाद की बात चल रही थी. बहुत ज्यादा अनसाइंटिफिक जो भी सारे आइडियाज थे मतलब वो सारे आइडियाज मीडिया प्रमोट करने लगी. तो I just lost a bit of faith in media. So I decided that I think that there should be some counter narrative to simplistic ideas which are promoted by the media. So I decided that I will go back to Aligarh and I will work on my book, which I have been thinking about. And I quit my job, and pandemic happened. So I had nothing else to do. मतलब मुझे इतना ज़्यादा सुकून था. I was cut off from the world. तो मैंने ये सोचा कि शायद यही वक्त है मैं अपनी किताब लिख पाऊंगा. अब वो वक्त भी थोड़ा ऐसा था कि उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ इस तरह से अलीगढ़ में कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनने को मिलती थी. कभी अलीगढ़ में कोविड-19 के दौरान किसी ने किसी को एक मॉब ने घेर के किसी को मारा था. ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए जो हमें सुनने को मिलते थे. तो एक वो वाला माहौल जो मुझे लगता था जब मैं बड़ा हो रहा था, जब अलीगढ़ में राइट बहुत रेगुलरली होते थे, वो वाला माहौल एकदम से फिर से वापस आने लगा. तो तो वो वाली चीज़ है. मुझे लगा कि ये बहुत सही वक्त है कि मुझे लिखना चाहिए और शायद अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं लिख पाऊँगा. ये मेरा जो ख्वाब है, वो ख्वाब रह जाएगा. तो फिर मैंने किताब लिखी. अपनी पुरानी मेमोरीज़ भी मैंने याद करी उस दौरान. और इसको लिखने में तो ये सोचें कि अगर मैं सोचूँ अगर आइडिया से तो 7-8 साल लगे, पर एक्टिव जो उसमें मैंने होली डेडिकेट करा हो, उसमें मुझे 2 साल मुझे लिखने में लगे और 1 साल इसको फिर बाद में रीराइट्स और चेंजेस वगैरह करने में. तो ओवरऑल आप मान लें कि 3 साल, 5 साल की थिंकिंग और 3 साल का काम. आपने मीडिया की बात की तो वो तो एक पेट सब्जेक्ट है मेरा. पेट पीव भी बोलिए actually rather, but we'll talk more about that little down the line. But in the introduction on the flap,
of the book, there's a telling line, and I quote: Zayad Masroor Khan was only 4 years old when he realized that an innocent act of playing with a switch near a window overlooking the street could trigger a riot. Stop quote. What was that incident? And also, what it tells me is that both sides are simply waiting to attack the other, and anything will do as an excuse. What's your view? देखिए, मुझे ये लगता है कि जैसे कि किसी भी जगह पर जैसे कि सच हमेशा बीच में होता है अक्सर। तो मुझे ये भी लगता है कि अक्सर प्रोग्रेसिव लोग ऐसा कहते हैं कि लाइक सब इंडिया में सब कुछ अच्छा है, हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। एट द अदर एंड जो राइट विंग है, तो राइट विंग ये कहता है कि भई नहीं, ये तो हमारे दुश्मन हैं और ये तो बहुत पुरानी लड़ाई चली आ रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो सच है वो हमेशा बीच में रहता है। तो इसी तरह का जो ग्रेज़ में अगर आप जाते हैं, तो उसी में ये देश बसता है। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, ऐसा भी है कि जब लड़ाई होती है तो लड़ाई बहुत ज़्यादा एकदम से कोई इंसिडेंट हो जाता है तो लोग आपस में खून-खराबा होता है, राइट्स होते हैं, बहुत कॉमन है। अब इतना कॉमन नहीं है, एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा कॉमन था। पर मुझे लगता है अब धीरे-धीरे करके अलीगढ़ में पिछले 10, 12, 15 साल से कोई कम्युनल वायलेंस लार्ज स्केल नहीं हुई है। तो पर ये जो मैं जिस टाइम पे मैं ये इंसिडेंट की आप बात बता रहे हैं कि मेरे घर में एक स्विच था, ये 1992 राइट्स के बाद की बात है। बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करा गया था कुछ ही दिनों पहले। उसके बाद अलीगढ़ में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुई थी, कम्युनल वायलेंस। मतलब इट इज़ सेड कि 91 पीपल डाइड, इट इज़ इन रिकॉर्ड्स। एंड लाइक वो बस 1-2 महीने के अंदर ही, तो उसके अलावा भी देयर वर सो मेनी पीपल हू डाइड, एंड तो मैं 4 साल का था, तो मुझे बस ये शायद ये किस्सा याद है जो मैंने किताब में भी नरेट करा है। तो मेरे घर के ड्राइंग रूम में एक छोटा-सा प्लग लटक रहा था, एक स्विच था। तो मुझे ये लगता था कि स्विच, ये बटन किस चीज़ का है? क्या किसे चलाऊँगा तो पंखा जल जाएगा या हो सकता है लाइट जल जाए। तो ऐसे बच्चे होते हैं तो जिनको अक्सर ये मतलब कोई स्विचेस दबाने का बड़ा शौक था। मैं भी उन्हीं बच्चों में था। तो फिर जब एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे भाई ने वहाँ पर कुर्सी रख दी, तो फिर मैंने सोचा कि आज ही ये मौका है कि आज तो मैं चला के देख ही लूँगा कि इस बटन से क्या होता है। As soon as I pressed that switch, all hell broke loose। मतलब जैसे ही मैंने स्विच लगाया तो एकदम से मेरे इलाके में तेज़ आवाज़ आती है कि हिंदू आ रहे हैं हमें मारने के लिए, लाइक जमा हो जाओ। तो और लोग वहाँ पे घरों से निकल कर जमा हो जाते हैं। तो बाद में ये वाली बात पता चली कि उस टाइम पे इतने ज़्यादा रायट्स होते थे अलीगढ़ में, इतने ज़्यादा रोज़ाना, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हमारे इलाके में कभी न कभी कोई वायलेंस होती रहती थी आस-पास, और हो रही थी। तो लोगों ने अपने घरों में ये डिफेंस मैकेनिज़्म लगवा लिए थे कि अगर कोई कोई अगर चढ़ाई हो दूसरी तरफ से तो आप ये बटन दबा दें, ताकि सब लोगों को पता लग जाए कि एक अलार्म सिस्टम टाइप का। ये 1992 की बात है। तो इस तरह से, जिसके बारे में पॉल ब्रास एक एकेडमिक है, उन्होंने बात करी थी कि अलीगढ़ में एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट सिस्टम है जो अपने आप को सस्टेन करता रहता है। तो उस टाइम में राइट्स यहाँ पे, मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, मतलब हर बार, तो यहाँ पे ऐसा लगता था कि हर साल में कहीं न कहीं कम्युनल वायलेंस हो जाती थी। It's just a तो regular cycle. उस बहुत ज़्यादा रेगुलर, मतलब ये है कि अभी हो रहा है, कभी भी हो सकता है, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था, अपनी लाइफ में नॉर्मलाइज़ कर लिया था। मतलब Actually, कभी भी yeah. किसी को गोली पड़ सकती है। Yeah. ये एक्चुअली ये नॉर्मलाइजेशन की बात आई तो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज कम्युनल फ्लेयर अप्स दैट हैपन, बट देयर इज आल्सो वेरी क्विक रिकंसिलिएशन। अभी आपने बताया किताब में कि समवन्स ब्रांड न्यू कार इज बर्न्ट, बट देन ही इज बैक टू नॉर्मल रिलेशंस विद दोज हु डिड इट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। So this is very typical of Hindu-Muslim relations in India over the years, isn't it? एक fiery exchange होता है, but there's also a settling down over time and acceptance that there's no changing the fact that we are all part of the same national fabric. देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि ये वाली बात है कि जैसे मुझे लगता है कि इंडिया ख़ास तौर पे 2 भागों में बँट गया है, ख़ास तौर से सोशल मीडिया आने के बाद। तो उसमें ये है कि काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि वायलेंस जो है, या तो ये है कि रिकॉन्सिलिएशन होता है ना? ऐसा नहीं है कि अपने खुद के मैकेनिज़्म्स नहीं हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में रिकॉन्सिलिएशन करने के।
जो हमेशा से मौजूद हैं। इनफैक्ट जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 2012 10-12 सोशल मीडिया आने के बाद इतने ज़्यादा लेफ्ट राइट वाली एक बाइनरी बन गई और इतना ज़्यादा हिंदू मुसलमान एक दूसरे के अगेंस्ट वाली एक बाइनरी, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा उससे पहले बहुत इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में ये वाली बात हुआ करती थी कि ये लेफ्ट राइट एक वो है। तो ये क्योंकि हम प्रोडक्ट खुद बन चुके हैं तो इसलिए तो सोशल मीडिया ने इसको इतना ज़्यादा वो आगे इतना ज़्यादा बढ़ाया है। So like now we are becoming product and this binary of Hindu Muslim and so like and left right has become so much more and all encompassing. पर ये है कि मतलब अगर लड़ाई होती भी थी तो लड़ाई बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाती थी। मतलब ऐसा नहीं होता था कि भई अगर कोई लड़ाई हो गई तो हिंदू-मुसलमान एक-दूसरे से मतलब बिल्कुल दुश्मनी, दुश्मनी, दुश्मनी उसपे लाइक उसपे जब तक कि कोई पॉलिटिशियन अगर कोई उसपे अगर जाकर उसपे कोई फ़ायदा उठाने का और अपने हाथ सेकने की कोशिश नहीं करते थे, तो बात अक्सर एटलीस्ट अलीगढ़ में वहीं कंटेन हो जाती थी। अक्सर जो लार्ज स्केल वायलेंस जो होती है, तो वो तब होती है जब का कोई ना कोई एक पॉलिटिकल फ़ायदा किसी का हो रहा हो। या फिर अक्सर ऐसा भी होता था, अक्सर जो अमीर लोग होते थे, अक्सर वो भी करवाते थे वायलेंस। वो इस वजह से करवाते थे कि लड़ाई-झगड़ा हो जाए तो किसी जगह पे कोई गरीब लोग रह रहे हैं, मतलब अगर झुग्गी-झोपड़ी है, उनको वो जगह खाली करवानी है और वो चाहते हैं कि लोग यहाँ से चले जाएँ। तो वो अक्सर वायलेंस स्टार्ट करवाते थे ताकि उनको कोई प्लॉट बेचने में आसानी हो जाए, लोग चले जाएँ, ये इस जगह का जो दाम है नीचे गिर जाए। तो जब तक कि इस तरह का फ़ायदा नहीं होता है, तब तक लोग रिकंसाइल कर लेते हैं। पर अक्सर मुझे यही लगता है कि जब से और ख़ास तौर से पिछले 10-20 साल में कि अब रिकॉन्सिलिएशन का स्कोप बहुत ज़्यादा कम धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि मतलब क्योंकि सिर्फ इसी में तो फ़ायदा है ना, लाइक जब तक के उन पॉलिटिशियंस को जो भी पावर में है, चाहे कोई भी पार्टी हो, मुझे ये लगता है कि ये लोग सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट में करवा कर पावर में है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा होगा, तो लोग बहुत अलग इश्यूज़ के लिए वोट करेंगे। तो अक्सर मुझे लगता है कि ये अक्सर जो लोग पॉलिटिकल पावर है, पावर जो मेंटेन जो फूको भी कहते हैं कि अक्सर नॉलेज को कंटेन करके करी जाती है। तो आई थिंक क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है उसको बहुत ज़्यादा गवर्न करती है जो कि को पॉलिटिकल पार्टीज़ और वो रिकॉन्सिलिएशन नहीं होने देती। जब नहीं होता इन्वॉल्वमेंट तो रिकॉन्सिलिएशन हो जाता है। या आपकी जो राइटिंग है, it also exudes a great fondness for Aligarh. Despite the fact that it isn't a very well kept city, civic services are lacking, it has grown haphazardly as you've described. So, what was it like in your early years? देखिए मुझे लगता है कि हर जो बच्चा होता है तो उसके लिए बचपन बड़ा प्यारा और खूबसूरत ही होता है। तो मेरा भी चाहे मैं घेटों में पड़ा-बड़ा था तो मुझे मेरा जो घर था, है ना? एक तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे अपना इलाका भी थोड़ा गंदा था, है ना? लड़ाई-झगड़ा होता था पर मेरा बचपन था, है ना? मुझे वो उतना ही खूबसूरत लगता था जितना किसी बच्चे को अपना बहुत बड़ा आलीशान इलाका लगता होगा या मकान लगता होगा। मेरा घर तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत था, मेरे दादा ने बनाया था, तो ऐसा लगता था एक बड़ी-सी दुनिया है, जिसमें क्या कहते हैं मतलब हम लोग एक तरीके से हम दूसरी तरफ चले जाते हैं, बहुत केयर फ्री डेज़ थे। अक्सर ये था कि उस मतलब वो वाला था कि शायद इन जगहों पे लोगों के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं थे, पर कह सकता हूँ शायद लोगों के दिल बड़े थे। तो ऐसा होता था कि लोग एक-दूसरे के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, एक-दूसरे के लिए लोग आपस में मदद करते थे। तो मतलब ऐसा भी होता था जैसे कि आजकल इतना ज़्यादा जो डिफरेंसेस हो गए हैं, वो नहीं थे। मतलब लोग अक्सर मुसलमानों के घर पे आया करते थे ईद के लिए और हिंदुओं के घर हम जाते थे दिवाली पे, होली पे। तो ये था जबकि ये सब चीज़ें हो रही हैं तो पर ये वाली बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा कम थी। तो मुझे ये लगता है कि अलीगढ़ में प्रॉब्लम्स तो थी हमेशा से सिविक अम, खास तौर पे जो सिटी का एरिया जहाँ पे मैं रहता हूँ, पुराना इलाका, ये काफ़ी गरीब था। यहाँ पे ज़्यादातर जो घर थे, वो ताला बनाने वाले लॉक वर्कर्स, मेरे ज़्यादातर जो नेबर्स थे, वो लॉक वर्कर्स थे। अमेनिटीज़ की कमी थी।
मुसलमानों को अक्सर ये लगता था कि हमारे इलाके में इतना ज़्यादा सफाई नहीं होती, यहाँ की रोडें खराब हैं, पानी भरता है तो सही से अच्छे तरीके से इसको रिज़ॉल्व नहीं करा जाता। तो ये वाली चीज़ें रही हमेशा, एक हॉस्पिटल भी कभी नहीं बना यहाँ पर। तो सब जगह पर जिस तरह से मुसलमान इलाके होते हैं, थोड़े से वहाँ पे एमिनिटीज़ की कमी होती है। पर पर क्या बताएँ, घर-घर होता है। तो मुझे इतना ही मज़ा आता था उस अलीगढ़ में, बहुत सुकून था। एक छोटे शहर था और एक अपनी खूबसूरती थी। जब लड़ाई होती थी तो फिर ऐसा लगता था कि शायद बिल्कुल दुनिया खत्म होने वाली है। तो शायद लोग आसानी से जो है ना, इनके पास इतने अच्छे सोशल सिस्टम्स थे कि अगर कुछ वायलेंस होती भी थी तो लोग उभर जाते थे। पता नहीं क्या एक स्ट्रेंथ थी उस वक़्त में लोगों के पास, और क्या सोसाइटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, अ, या फिर हम लोग आपस में बहुत ज़्यादा एक-दूसरे की बातें सुनते थे शायद। तो मुझे ये लगता है कि वो अलीगढ़ काफ़ी ज़्यादा हैफ़-हज़ार्ड तो था, सिविक एमेनिटीज़ कम थी, पर मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। ज़ियाद, एक डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन जो था अलीगढ़ का भी है, इज़ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो व्हाट वाज़ इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द सिटी? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ का, ये मान लें कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है। Like people are so proud about Aligarh Muslim University. Like everybody, Hindus and Muslims, like it was seen as कि भाई अलीगढ़ में तो एक बहुत बड़ा एक हमारा एजुकेशन को दायरा है. And it was a matter of pride for everybody, regardless of religion. Uh, and it was also a source of income for many people. Like so many people. So Aligarh, in that sense, this idea that Aligarh Muslim University is only for the Muslims and the minority institution and everything has just grown in the last 2 decades. Like that narrative कि जिन्ना की वोट रेट है यहाँ पे फलाना. Even the Hindus used to look at Aligarh Muslim University as a matter of prestige for the city. They consider it as their own heritage. The Muslim heritage was not different from Hindu heritage. It was Indian heritage. That point. I think Aligarh Muslim University also has a very big role in educating people from all across the country. Like अगर शायद एक लोग कहते हैं कि एमयू अगर नहीं होता तो यूपी और बिहार के खास तौर पे बहुत गरीब इलाकों के जो लोग थे, जो शायद यहाँ पर आकर बहुत कम पैसों में पढ़ लिए, वो शायद कभी पढ़ ही नहीं पाते। तो इसका नेशनल सर्विस में, ऑफ कोर्स मुसलमानों का स्पेशली में, पर सबके लिए जो भी खास तौर पे जो गरीब तबका था, उनको अपलिफ्ट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और उसके अलावा अलीगढ़, मुझे तो ये लगता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, मैं मानता हूँ कंजर्वेटिव है, पेट्रियार्कल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आप जिसका जिसका जो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत पहला है। ये अपना जो इसका जो कल्चरल एलिमेंट है, मुझे लगता है अलीगढ़ की सेंसिबिलिटी वही है जो यूपी की किसी भी स्मॉल टाउन की सेंसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है। इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू जो मीडिया इसको दिखाती है, मुझे तो ये लगता है कि अलीगढ़, अगर आप अलीगढ़ किसी भी अगर आप जगह से जाएँ, अ, अगर किसी और शहर से कंपेयर करें, जैसे अगर आगरा हुआ या फिर आस-पास के जो इलाके हैं, मथुरा हुआ, इटावा हुआ, अलीगढ़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। Aligarh is a much progressive small town than most of the neighboring small towns uh, in Uttar Pradesh. But because it's a minority institution, because it is a Muslim dominant town, it is looked at with very suspicion. कि अगर मुसलमान डोमिनेंट है तो भई बहुत कंज़र्वेटिव होगा और मुसब औरतें बड़ी ज़्यादा वो होंगी, सप्रेस्ड होंगी। पर मैं ये कहता हूँ कि हाँ, हैं तो, पर ऐसा नहीं है कि औरतें और जगह सप्रेस नहीं है। मतलब आप दूसरी जगहों पे आप नहीं देख रहे हो पेट्रियार्की, यहाँ देख रहे हो। तो अलीगढ़ की प्रॉब्लम्स हैं, जो कि एक स्मॉल टाउन यूपी की प्रॉब्लम्स हैं। पर एट द सेम टाइम एएमयू बहुत हिस्टोरिक जगह है। एएमयू ने एक पॉलिटिकल अवेयरनेस दी इंडियन मुसलमानों को। एएमयू ने काफ़ी लोगों को जॉब्स दी। एएमयू ने काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स पैदा करे। एएमयू ने 5 हेड्स ऑफ स्टेट दिए। मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों जगहों पे एएमयू के हेड्स बने हैं। तो मतलब पता नहीं कितने सुप्रीम कोर्ट जजेस आए हैं यहाँ से, पता नहीं कितने मिनिस्टर्स आए हैं यहाँ से। Writers also. अगर आप राइटर्स लाइक मंटो, इस्मत चुगताई,
ध्यानचंद यहाँ से हैं, अगर बहुत सारे लोगों को मेजर ध्यानचंद, वो हॉकी खेलते थे यहाँ पे, वो फिर मेडल लेकर आए इंडिया के लिए। Yeah. तो बहुत सारे मतलब, और उस टाइम पर मुझे लगता है कि ये जो अलीगढ़ तो एक इंटेलेक्चुअलिज़्म का हब था। चाहे और उसमें बहुत जो जो हिंदू, मुसलमान जो भी प्रोग्रेसिव लोग थे, वो उनका एक हब था, वो पॉलिटिकल डिस्कशंस करते थे यहाँ पर। अ, और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स यहाँ की एक नस-नस में जो बसती है, उसका बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एएमयू विद ऑल इट्स फ्लॉज़, अगर शायद अलीगढ़ में नहीं होता, तो अलीगढ़ के बारे में बहुत कम लोग जान रहे होते, ये एक सच्ची बात। Absolutely. I want to return to your childhood, and I love how the locality you grew up in, Uppercote, was called UK to make it sound cool. And there are also the urban legends associated with small towns across India. In the case of Aligarh, there is the Bona Daku, the dwarf dacoit, who would make his way through little caves and attack his enemies from behind. Of course, this is an urban legend. Could you just recount a little bit of that for us? जब मैं किताब ये लिख रहा था, तो मुझे ये लगता था कि देखो, मैं कम्युनल वायलेंस की बात कर रहा हूँ, ये तो काफ़ी ही बोरिंग टॉपिक है, कौन पढ़ना चाहेगा? तो फिर मेरा ये भी था कि कहीं न कहीं बहुत ट्रेजेडी वाला, काफ़ी मुझे लगता है कि कोई उठाए इस किताब को पढ़ने के लिए, फिर फ़ौरन ही बोर हो जाएगा, यार दिमाग इतना किसके पास है? आई थिंक लोगों को ऐसा लगता, तो मुझे लगता था कि मैं कहीं न कहीं अलीगढ़ का जो एलिमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल एलिमेंट्स में, वो ज़रूर यहाँ पे लेकर आऊँ। तो अगर कोई भी कभी अलीगढ़ आया है, तो अलीगढ़ में ये अर्बन लेजेंड्स और र्यूमर्स और ढाबे पे सारी जो बातें, डिस्कशन जो होते हैं, गप्पे भी जो लड़ती हैं, अगर वो एलिमेंट अगर मैं नहीं लाया अपनी किताब के अंदर, तो मैंने अलीगढ़ पे क्या ही किताब लिखी। So that's absolutely true, तो actually, of all small towns. And why small towns? Even cities. The banter, the meeting up, the gossip, the socialization is so much part of everyday life. या तो लाइक कि मैं लाइक अगर अक्सर ऐसा होता है कि बिकॉज़ जर्नलिज़्म के आप एंगल से अगर आप देखते हो, तो आप कभी अक्सर कॉन्फ्लिक्ट देख रहे होते हो। आप कल्चर अक्सर नहीं देखते हो। तो मैं अलीगढ़ का कल्चर भी देखना चाहता था। मैं मतलब सिर्फ़ अलीगढ़ की एक का मतलब राइट्स, कम्युनल वायलेंस, यहाँ की हिस्ट्री के अलावा मेरी खुद की लाइफ़ मेमोइर है। उसके अलावा मुझे लगता था कि एक अगर कोई अलीगढ़ के बारे में भी मेरी किताब पढ़े, तो उस अलीगढ़ के कल्चर का एक अंदाज़ा हो जाए, उसे ऐसा महसूस हो कि वो अलीगढ़ में कुछ दिन बिता कर आ गया है। Absolutely. तो मुझे ये लगता Yeah. And actually, that comes through a lot when you write very fondly about your home, Farsh Manzil. And that home, as you said, was built by your grandfather. But it's not just the structure, right? It's also the people that live in it, your siblings, your parents, Buddy and me. Uh, does it still stand? Tell us about the house a bit. I'm still right now talking on this podcast from this house. I am in Farsh Manzil right now, so of course it still stands. It's a big house. Matlab, it was constructed by my grandfather during, in the beginning of the 20th century, and like there is उनके भाई और उन दोनों ने मिलकर एक जगह ढूंढी अलीगढ़ में, एक बड़ी ही एक अलग सी एक नाले के बराबर में जगह, जहाँ पर कोई उनको नहीं चाहिए था। अलीगढ़ बस एक धीरे धीरे एक शहर बन रहा था अभी, तब उन्होंने ये जगह ढूंढी और फिर उन्होंने ये सोचा कि इस जगह पे मैं कैसे यूटिलाइज करके एक बेहतरीन बड़ा एक सुकून वाला घर बना सकता हूँ। तो शायद उन्होंने इतना ज़्यादा उसमें मेहनत करी और वो नज़र आती है। मतलब मुझे लगता है कि अब 125 साल हो गए हैं और ये अभी तक वैसा का वैसा है। दरवाज़े मेरे घर के मतलब अभी भी वो ही हैं जो 100 साल पुराने दरवाज़े थे और बिल्कुल ऐसे लगते हैं जो बिल्कुल नए हैं। तो ये कहते हैं कि मेरे दादा ने इसको बनवाने के लिए पूरा शीशम का बाग एक खरीदा था, ताकि तो उस तरह से उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करा था। वो अपनी सारी गाँव की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ पर घर बनाने आए थे। तो तो बड़ा उस ज़माने में ये होता था कि भई घर बना रहे हैं तो हम अपनी जनरेशंस के लिए बनाएँगे, आने वाले हमारे बच्चे रहेंगे, उनके बच्चों के बच्चे रहेंगे। तो जॉइंट फैमिलीज़ का एक कांसेप्ट था, तो उसी हिसाब से ये घर बनाया गया है। काफ़ी ओपन घर है। तो यहाँ पे बैठकें हैं, है ना? यहाँ पे एक बेसमेंट है, यहाँ पे खुले एरियाज़ हैं, मतलब आँगन है, एक छोटा-सा गार्डन हुआ करता था।
तो उस तरह से धूप आ सकती है, हवा बहुत अच्छी आती है। अगर आप मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से पहले का घर है। जब इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में नहीं आई थी, ये तब का घर है। तो मतलब ऐसा घर कि यहाँ पे अगर गर्मी में एसी क्या पंखा भी ना हो तो भी काम चल जाए। तो उस तरह से बनाया गया था और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें नक्काशी हुई है दीवारों पे और पिलर्स पे नक्काशी हुई है और बहुत सिमेट्रिकल तरीके से बनाया गया है कि मेरा जो मेन कमरा है, जो एक हॉल कमरा है, उसमें ये मान लें कि 6 दरवाज़े हैं, 3 इधर, 3 इधर। किसी और कमरे में 6 दरवाज़े हैं, मतलब इतना खुला हुआ है कि मतलब इसमें रोशनी आ सकती है, तो बहुत सिमेट्रिकल ऐसा लगता है कि आप किसी पुराने बिल्कुल 20th सेंचुरी यूपी में आ गए हैं। Yeah. तो And मुझे you अभी भी वही वाली फ़ील कराता है। Yeah. And you write very touchingly. I think there's a chapter on how the house changes with the growing needs of the family. The family grows, and so the house also changes accordingly. And there is a passage on how it was a separate toilet that gave you much happiness rather than so many डेफ़िनेटली। of the rooms that were then added. तो जी, मतलब जिस तरह से ये घर बनाया था पुराने घर, अब उसमें तो बहुत सारे लोग तो पार्टीशन के बाद चले गए। पाकिस्तान मेरे अब्बा के 3-4 भाई तो चले गए। तो मेरे मेरे पापा बचे और मेरे ताया, एक बड़े ताया, हम 2 लोग बचे यहाँ पर। तो अब ये था कि ये 2 फैमिलीज़ जो मेरा पोर्शन है वहाँ पे रहते थे। तो पर अब ये भी है कि अब जैसा उन्होंने बताया था, अब वैसे तो मॉडर्न फैमिलीज़ उसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। तो उसमें हर थोड़े दिनों बाद कुछ नई-नई चीज़ें होती रहती हैं। जैसे-जैसे इंडिया बदल रहा था, तो फर्श मंज़िल भी बदल रहा था। जब इंडिया में ड्राइंग रूम का कांसेप्ट आया, तो हमारे अब्बा ने एक पुरानी एक गैलरी थी, तो उसको बस खत्म करवा के एक ड्राइंग रूम बना दिया, जिस ड्राइंग रूम में ये किताब लिखी गई है, ज़्यादा मेजर पोर्शन। अ, फिर उसके बाद जब ये कांसेप्ट आए अलमारियों के, तो कुछ अलमारियाँ भी बदलवा दी गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब वॉशरूम का मतलब मेरे घर में एक 95 पे एक मेजर रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, तब हमारे पुराना वॉशरूम हुआ करता था जिसको 2 फैमिली शेयर करती थी। काफ़ी जिस तरह के पुराने वॉशरूम्स होते हैं, काफ़ी डार्क था और वहाँ पे छिपकलियाँ और थोड़ी वो भी आती थी। तो पर जब उसको तोड़ के 2 नए वॉशरूम बने जो बहुत अलग-अलग साफ-सुथरे, जहाँ पे छिपकलियाँ भी नहीं आती, खुला हुआ भी है और उसमें मॉडर्न एमेनिटीज़ हैं, तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि वाओ! ये तो हमारा घर बिल्कुल ही एक तरह से अपग्रेड हो गया। फिर बाद में उसके बाद उसका किचन भी, हमारा एक पुराना किचन था, तो पुराने किचन को तोड़ के नया किचन बनवाया गया हमारे घर में। फिर उसके बाद ऐसा भी मेजर रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ, तो काफ़ी जो पुराना एरिया था उसको खत्म करके नए एरियाज़ बनाए गए। आँगन भी हमारा जो एक था मेजर, वो उसको खत्म कर दिया गया। तो ये वाली चीज़ है कि जैसे-जैसे इंडिया बदल रहा था, वैसे-वैसे फर्श मंज़िल भी बदल रहा था। और जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि कैसे-कैसे फैमिलीज़ चेंज होती हैं, कैसे-कैसे मुल्क चेंज होते हैं और कैसे-कैसे ऐसे ही घर भी चेंज होते हैं। तो एक ये सिमिलैरिटीज़, ये पैरेलल्स मेरे ख़्याल से आपको दिखेंगे और मेरा मकसद ये भी था कि कैसे जो पॉलिटिकल और टाइम्स अगर चेंज होते हैं, तो कैसे पॉलिटिक्स चेंज होती है, कैसे नेशन चेंज होते हैं, कैसे मेरी इलाका चेंज हुआ, ऊपर-कोट चेंज हो गया। मेरे आस-पास के लोगों के रिलेशंस बदल गए। हिंदू मुसलमानों के बीच में। तो वो जो चेंजेज़ हैं, अब आप उनको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप आप ये देखें कि ये बेहतर हुआ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो पहले बेहतर थे, अब हम खराब हो रहे हैं। आप उसको कैसे भी देखें, पर जो वक़्त है, वक़्त अपनी चाल चलता रहता है, Yeah. तो कहीं न कहीं उसी को मैंने अपनी किताब में दिखाना चाहा है। But yeah, this is a good time to talk about the lived Muslim experience, the sometimes subtle, the sometimes overt discrimination that is part even of school life. And we've heard so many such incidents in recent times. And there was an experience you had for a school performance during Ramzan. And also, when you said you idolized Shah Rukh Khan, could you tell us a little bit about that? तो ये वाली बात थी कि जब मैं स्कूल में था और मैं जाता था स्कूल में, तो पता नहीं मेरे अंदर बचपन में एक चीज़ होती है ना, फ़िल्टर दिमाग में कि ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है। तो वो मेरे दिमाग में बचपन से वो फ़िल्टर ही नहीं थे, पता नहीं क्यों। तो मैं जिससे भी मुझसे जो भी कोई बात बोलता था, तो मैं कोई ऐसी, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे तो वो ही बोल देते हैं कि जो उनके दिल में होता है, साफ-साफ बात।
और अभी भी मेरे दिमाग में अभी भी कोई आप किताब अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बिना फ़िल्टर के बात करता है। तो मैं बचपन में भी ऐसा ही था, तो अक्सर ये था कि मेरी टीचर ने मुझसे एक बार ये सवाल पूछा कि भई आपको आपका मतलब हू इज़ योर आइडल सबको बोलना है। तो भई मैंने टीचर को मैंने कहा कि भई मेरा तो शाहरुख खान है। तो टीचर ने मुझसे कहा कि शाहरुख खान क्यों? तो उनको ये पता था कि मैं थोड़ा-सा क्योंकि मैं घेटो से आता हूँ, मैं थोड़ा-सा रिलीजियस मेरा इंक्लिनेशंस रहता है। मैं मैं अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को कैरी करता हूँ। तो वो मुझसे पूछती गई कि क्यों? मैंने कहा मुझे शाहरुख खान का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा अच्छा और आप बताएँ आपको और क्यों शाहरुख खान ही क्यों अच्छा लगता है? ऐसे तो और भी एक्टर्स हैं जिनका स्टाइल अच्छा है। तो फिर मैंने कहा कि उसकी फ़िल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उसका जो है ना उसके कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अ, उसकी फिर उन्होंने कहा अच्छा और भी कुछ बताएँ? मैंने कहा मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, उसका बात करने का अंदाज़, सेंस ऑफ ह्यूमर वो बहुत एक छोटी फैमिली से आया था, वो पूछती गईं। तो असल में फिर आखिर में मैंने कहा कि हाँ, मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि वो मुसलमान तो उस पर ये मेरी टीचर जो कि मुझसे यही वाली बात निकलवाना चाह रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कहीं न कहीं फैक्टर है। तो मतलब क्योंकि आप माइनॉरिटी हैं और इसमें कोई मुझे लगता नहीं है इसमें कोई शर्म की बात है। अगर अमेरिका में अगर किसी ब्लैक इंसान को अगर ओबामा को देखकर या फिर मार्टिन लूथर किंग को देखकर अगर इंस्पिरेशन मिलती है, तो उसको तो कोई जज नहीं करता, उसको तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ही माना जाता है। और अगर हिंदू है वो गांधी से इंस्पायर्ड होता है, अगर वो क्या कहते हैं नेहरू से इंस्पायर्ड होता है तो उसको तो आप कम्युनल नहीं कहते। पर अगर अपनी कम्युनिटी के किसी एक सक्सेसफुल आदमी से तो कहीं न कहीं ये देखा जाएगा कि तुम कम्युनल हो। वो जो पर्सपेक्टिव है, जो वो लेंस है, वो मैं अक्सर किताब में भी मैंने एक्सप्लोर करा है कि लोगों का जो आपका जो देखने का नज़रिया ही है मुसलमानों को देखने का लेंस ही है, अक्सर वो ही करप्टेड होता है, कि भई मुसलमान तो प्रॉब्लमैटिक होते ही हैं। तो अगर अब उसमें मैं पूरी ज़िंदगी भी मैं गुज़ार दूँ कि भई मैं बड़ा ही बहुत हार्मलेस इंसान हूँ, अगर मैं किसी को कुछ बुरी बात भी नहीं करता, मैंने आज तक किसी पे वो भी नहीं उठाया, तो भी मुझे अक्सर एक जनरल डिस्कोर्स में जिस तरह का मीडिया जिस तरह से प्रेज़ेंट कर रहा है, कि आपको सस्पिशन की निगाहों से ही देखा जाएगा क्योंकि ऑफ़ कोर्स उसमें पैसा है। अगर क्योंकि हेट में ज़्यादा पैसा है, लव में थोड़ा-सा मोहब्बत में पैसा ज़रा कम है। तो उसमें इस तरह से मीडिया उन वाली चीज़ों को ज़्यादा आगे बढ़ाती है। तो कहीं न कहीं तो वो मेरी टीचर ने मुझसे ये वाली बात निकाली और फिर मुझे उस पे डाँट भी पड़ी और फिर मैंने उनसे माफ़ी भी माँगी। तो ये था कि स्कूल में मैं मतलब अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी कैरी करता था क्योंकि मैं घेटो से आता था, सबको ये वाली बात पता थी। मुझे ऐसे ही देखा जाता था। तो एक मेरे साथ जब भी मैं आता था स्कूल में तो एक मेरे अराउंड एक सस्पिशन तो था ही। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि अब तो बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हो गए हैं। मतलब बच्चों के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन Yes, क्यों कर रहे yes. हो? In fact, we've had है reports ना? of school children being called Pakistanis by their classmates or Nali ke Keede as, someone you've very eloquently described what happened with you. But how does it impact a child over the long term? मुझे ये लगता है कि ये लोग जो अपने बच्चों को ऐसा सिखा रहे हैं, वो अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, है ना? और मुझे ये लगता है कि ये आप अगर किसी को उनके दिमाग में आप अभी से हेट डाल रहे हो, तो ये आप मुल्क को ना तो या आप अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, आप उनको एक इवॉल्व्ड इंसान बनने से रोक रहे हैं। आप कहीं न कहीं एक मुल्क को आप उसमें बाँट रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि अगर पता है हेट अगर इंसान के दिमाग में बहुत पहले से होती है, तो वो कहीं न कहीं उसको कहीं न कहीं हिंडर ज़रूर करती है, अगर आपके दिमाग में नफ़रत है। वो कहीं न कहीं आपको कंटेन ज़रूर करेगी। तो मुझे ये लगता है कि पता नहीं क्यों आजकल अगर आपकी प्रेजुडिसेस हैं भी, अगर आपको जो भी लगता है, तो आपको अपने बच्चे को एक ओपन फ्री माइंडेड में ओपन एक फ्री माइंड आप उसको दें, आप उसको सिखाएँ, दुनिया को समझने के टूल्स। तो अगर आप उसके दिमाग में प्रेजुडिसेस डालेंगे, तो एक तो ऑफ कोर्स मुसलमान बच्चों का तो जिनको अगर मुझे कोई नाली का कीड़ा अगर कह देगा, मेरे स्कूल में जाकर, तो ऑफ कोर्स मैं अपने आप को एलियनेटेड महसूस करूँगा। मेरे अंदर जो मेरे नेशन के लिए जो मोहब्बत होगी, जो मेरे मुल्क के लिए जो मोहब्बत होगी, अगर कोई मुझे रोज़ाना हर दूसरे दिन ये कहेगा तुम मुसलमान हो, तुम देशद्रोही हो, तुम नाली के कीड़े हो,
तो ज़ाहिर-सी बात है, तो आप मुझे एलियनेट कर रहे हो, आप मेरे उस मोहब्बत को मार रहे हो, उसका मर्डर कर रहे हैं आप, मोहब्बत का। तो वो एक अक्सर ये वाली एक चीज़ मैं देखता हूँ कि वो जनरल डिस्कोर्स में है। ऑल्सो एक इसमें ये वाली बात है कि उसके बाद अक्सर जो हिंदू मेजॉरिटेरियन और डिस्कोर्स है वो कहते हैं कि अरे आप मोहब्बत क्यों नहीं करते, है ना? अगर आप मुसलमानों के दिलों में तो वो है कि आपके दिनों में ये वाली चीज़ें क्यों हैं? मैंने कहा अक्सर आप लोग खुद ही आप हमें एलियनेट कर रहे हो, आप ये कह रहे हो आप देशद्रोही हो, आपको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है, आप नाली के कीड़े हो, आप इंसान ही नहीं हो और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि हम उसको तो ऑफ कोर्स एक इंसान कहीं न कहीं अपने आप को एलियनेटेड फ़ील करेगा मेनस्ट्रीम से। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आप कोई किसी भी बारे में अगर एलियनेशन का अगर आप कांसेप्ट पढ़ेंगे तो इसमें यही है। अगर आप किसी को एलियनेट कराएँगे अगर अपने घर में अगर आप किसी को रोज़ाना ये कहेंगे कि मैं तुम बुरे इंसान हो, तुम बुरे इंसान हो और उसके बाद आप उससे कहो यार तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? तो एक बड़ी फ़नी सी बात है। तो मुझे ये लगता है कहीं न कहीं इंडिया में जो हिंदू-मुसलमान वाला जो कन कन मैजॉरिटेरियन जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो मुझे लगता है कि वो एक डोमेस्टिक अब्यूज़िव रिलेशनशिप में बदल गया है। तो जैसे जैसे कि पेट्रियार्कल सेटअप में अक्सर ऐसा होता है जो पेट्रियार्की का एलिमेंट में ये होता है कि अक्सर कि भई मैं अपनी बीवी को अपने घर में रखता हूँ और अगर मैं उसपे हाथ उठा भी दूँ, तो क्या है मेरी बीवी है, मैं तो उठा सकता हूँ, है ना? तो ये मेरा हक है ना? और वो तब भी मेरी बीवी है, तब भी मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे मारता हूँ तब भी मैं उससे प्यार करता हूँ, है ना? तो मुझे ये लगता है कि एक अब्यूज़िव एक हिंदू कॉन्शियंस इस टाइम पर ये है कि हमें मुसलमानों को मारना भी है, हमें उनको सेकंड क्लास सिटिज़न भी दिखाना है, ये भी कहना है कि तुम देशद्रोही हो, उसके बाद भी तुम्हें बिल्कुल एपीजे अबुल कलाम टाइप का बनना है, ठीक है? सबको, सबको, हर इंसान को। तो कोई डाइवर्सिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है, आपको एक मोनोलिथ में आपको एक कंटेन कर देना चाहिए। तो मैं अक्सर ये वाली बात कहता हूँ कि जो हेट है, आप बिल्कुल ही बेसिक पर आ जाएँ, जो हेट है वो बच्चों के लिए भी है, आप जैसे कह रहे हैं आजकल इंसिडेंट्स हैं। तो हेट का एक जो मेजर एक आइडिया होता है, हेट लोगों को रिड्यूस करता है ना? कुछ चीज़ों में अरे यार ये तो अगर आप किसी से हेट करते हो अरे यार वो लोग अगर आप किसी रिश्तेदार से अरे यार वो लोग तो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही रहेंगे। और जो मोहब्बत है, लव है, वो लोगों को एनहांस करता है ह्यूमैनिटी से। तो अगर किसी को किसी से मोहब्बत होती है, अक्सर लवर्स को आप देखते हैं, तो वो अपने जो उनकी जो माशूक होती हैं, महबूब होते हैं, उनके बारे में तरह-तरह की बातें करते हैं, कि वो फूल जैसी है, वो इतनी वो बादल जैसी है ना? उनको डिवाइन बना देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो वाला एक एलिमेंट है कि आपको सबसे पहले अगर आपको अगर आपको ये चाहिए कि हम एक अच्छा देश बने, आगे जाके प्रोग्रेसिव बने, सबसे पहले आपको अपने और एट द सेम टाइम मुसलमानों को भी अपने दिलों के अंदर झाँक कर पहले देखना चाहिए, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। Yeah. And also, I think inevitably, Muslim ghetto is referred to as mini Pakistan, और जो उसका जो डिमार्केशन होता है उसे बॉर्डर कहा जाता है। और ये अलीगढ़ इट्स नॉट यूनिक टू अलीगढ़ रियली, यू सी दिस इन सो मेनी प्लेसेस, वी हैव सीन दिस अक्रॉस द कंट्री, इजंट इट? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये है कि अ, जो मुसलमान इलाके हैं, एक तो उनको ये कहा जाता है कि ये खतरनाक हैं, यहाँ पे क्रिमिनल्स रहते हैं, यहाँ पे देशद्रोही रहते हैं, ये मिनी पाकिस्तान है। और टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हिंदू ही कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं बाय द वे। जो पढ़े-लिखे प्रिविलेज एलीट मुसलमान हैं, वो भी अक्सर ऐसी ही बातें करते हैं। तो अक्सर जो जो Just to कॉन्फ्लिक्ट है clarify, sir, I think what you're saying is the elite Muslims say that about other Muslims, not about themselves. या That's what you're saying. जो दे से अबाउट पीपल हू लिव इन मुस्लिम गेटोज़। Yeah. So the not so fortunate, not people, नॉन not as हाँ, fortunate हाँ, as हाँ। them. Yeah. कि हम उनसे अलग हैं, हम Yeah. उनसे बेहतर हो गए हैं। वी आर द गुड मुस्लिम, हम पढ़े-लिखे लोग हैं, हम ऐसे नहीं हैं। और जो मुसलमान इलाकों में जो लोग होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। पर उनमें से शायद बहुत सारे लोगों ने मैं अलीगढ़ में मैंने जब बुक रिलीज़ करी थी, तो बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स थे अलीगढ़ के, वो कभी अलीगढ़ के किसी ऊपर कोर्ट नहीं आए जो मेरा इलाका है। तो उसमें से बहुत सारे लोग कभी ज़िंदगी में गेटो में गए ही नहीं होते हैं। तो उन्होंने उन लोगों को जितना भी एक रिड्यूस कर दिया होता है, तो वो जैसे एक हिंदू इलाके होते हैं कि भई वैसे ही मुसलमान इलाके होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे हम चुपचाप
कुछ प्लॉट कर रहे हैं मदरसों में कि भाई मारेंगे मारेंगे ठीक है ना? कुछ कुछ AK-47 जमा कर रहे हैं और व्हाटएवर, है ना? मतलब ऑल्सो ये जो भी सारी बहुत सारी जो चीज़ें जो अक्सर होती है, मुझे लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं। कहीं न कहीं किसी का कोई फ़ायदा हो रहा है तब होती हैं उस तरह की चीज़ें, मगर ऐसा नहीं है। आप जनरल डिस्कोर्स में जाके मदरसों में ये नहीं पढ़ाते कि आपको हिंदुओं को हेट करना है। मदरसों में ये पढ़ाते हैं अक्सर। मैं असल में एक महरौली में एक मदरसा है, वहाँ पर सोक्रेट्स पढ़ाते हैं, प्लेटो पढ़ाते हैं। मुझे कोई स्कूल बता दें जहाँ पे सोक्रेट्स पढ़ा रहे हों आज, सुकरात पढ़ा रहे हैं। Yeah. तो मतलब Yeah, and I तो also feel, ये भी है। Ziad, yeah, I also feel, Ziad, that poor people, if you're desperately poor, whether you're Hindu or Muslim or any other faith, your top priority is survival. I don't think you have the time or the headspace to think about politics or anything of that sort. मिडिल क्लास वाले जो सबसे ज़्यादा कम्युनल होती है ना? तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास होती है। तो जो सारी जो वैल्यूज़ का जो जो अपने ऊपर कंज़र्वेटिव वैल्यूज़ का जो अपने ऊपर जो बर्डन अगर रखते हैं, तो वो एक मिडिल क्लास होती है। और दिस इज़ द मिडिल क्लास मेंटालिटी के के गरीब को तो वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अपने आप को गरीब से उनको डिफरेंशिएट करना है ना, कि मैं गरीब में तो नहीं हूँ, पर और उनको यू नो और उनको अपने आप को ये दिखाना है कि आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन टू माय कंज़र्वेटिव वैल्यूज़, बट एट द सेम टाइम मैं इनसे अलग हूँ। तो जो अक्सर जो एलीट होते हैं और जो बिल्कुल गरीब होते हैं, वो अक्सर इतने ज़्यादा कंज़र्वेटिव नहीं होते। वो अक्सर एक मिडल क्लास ही ये बर्डन कैरी करती Yeah. है। But Ziad, I just want to also refer to the greatest inflection point if you look at the Hindu-Muslim relations in India after partition. So partition would be the first great inflection point, but after partition, the greatest inflection point would have been the demolition of the Babri Masjid. What happened in Aligarh immediately after that? Like immediately after the Babri Masjid, so there were violence. Of course, there was communal violence. At that time, RSS was very, very strong in Aligarh. Uh, at the same time, so like so they have very, very deep roots in Aligarh, like Hindu militant groups. So at many times they will inflate communal violence. Of course, मैं ये कह नहीं कह रहा मुसलमानों की तरफ से भी हुआ होगा। मतलब किसने भी करा जो भी करा, मगर the majority of the people who died eventually were Muslims. And most of them, those people were not killed in Hindu-Muslim violence. They were killed by police firing on Muslims. So that is what is always happens most of the time. Okay, communal violence, like right now, it's like the police will attack on, like if there is a violence, instead of stopping the violence equally and treating everybody equally, police जाकर मुसलमानों पे फायरिंग कर देती है। एंड लाइक जितने भी लोग उसमें मर जाएं तो मर जाएं। तो हमने ये तो दंगाई थे और सिर्फ इधर से ही दंगाई थे। तो तो उस तरह से ड्यूरिंग 91 people died in my locality after Babri Masjid riot. And when during the writing of the book, when I started looking for references, there were 3 references on the internet. 100 लोगों के करीब मर गए और इंटरनेट पे बस 2-3 रेफरेंसेस है। तो लोग इन मौतों के बारे में बात भी नहीं करते। Contrary to how to you see अमेरिका में टुल्सा मैसेकर हुआ था against the blacks. 30, 40 people died around. And they have memorialized that massacre in books, web series, cinema, वहाँ के म्यूजियम है कि बिकॉज 30, 40 people died. एंड वो लोग अपने इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं जो पुराने मैसेकर्स में। इंडिया मुझे लगता है कि डिनायल में रहता है कि हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है। लाइक द सेम हमारे यहाँ जैसे डोमेस्टिक अब्यूज होती ही नहीं है ना? वो तो बस बनाई हुई बात है। तो हमारे यहाँ वायलेंस होती ही नहीं है, तो उस तरह का एक रहता है। एंड 91 people died and there is a 2-3 mentions on the internet. Nobody really talks about it. Nobody, even the people, अगर आप उनसे जाकर अगर बात करें जो उस टाइम जो 90 बाबरी मस्जिद राइट्स के बारे में जो विक्टिम्स थे, उनकी फैमिलीज भी उनके बारे में बात करना खत्म कर देती हैं। कहते हैं ना, मूव ऑन कर लेते हैं। Like nobody really talks about people who go away. They become an elephant in the room which nobody really talks about. People move on. इंडिया में किसी के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। The life doesn't have that much value and
somebody will care about a relative who passed away 10 Yeah. years ago. That's Also, how Zia, it is. it strikes me in your narrative how disproportionate the trauma is on women, because they seem to be the most affected, and it's not just by communal clashes but also by the decisions that the men inevitably take, the way the world changes. And the opening chapter, for example, details their utter terror when a post-Babri riot happens, and there are aged women, there's your mother, there's a pregnant sister. So I mean, Yeah. what do you have to say about that? I think because like it's mostly men who are showing their masculinity by violence, and most of the time the most of the trauma is borne by women. तो अक्सर हाँ, जो वायलेंस में जो अक्सर कैजुअलिटीज होती हैं वो असल में अक्सर मेन होते हैं, पर अक्सर उसका जो मेंटल ट्रॉमा जो खास तौर पर होता है वो बहुत ज्यादा औरतों को झेलना पड़ता है। औरतों को के साथ फिजिकल वायलेंस भी होती है, ऑफ कोर्स रेप्स भी होते हैं, दिस इज द ट्रूथ। इफ यू लुक एट गुजरात राइट्स आल्सो देयर वर सो मेनी रेप्स आफ्टर दैट। तो देयर इज लाइक सो इन सो लाइक आल्सो लाइक अगर किसी के घर से कोई बेटा चला जाता है तो पूरी दुनिया एक तरफ, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो माँ को ही होता है ना? तो कुछ दिनों बाद भाई-बहन भी अपने कामों में लग जाते हैं, तो ओनली वन हू रिमेंबर्स अ चाइल्ड हू वाज़ देयर इज़ द माँ, कि मेरा एक बेटा था जो मेरा बहुत मोहब्बत करता था, अब नहीं रहा। So I think, like, at many, and also like during that ride that you talk about, my sister was pregnant. She was 8 months pregnant, and it was very difficult for her when there was an attack on our home, on our locality. It was very difficult for her to run away. So I don't know what happens to so many women who are like pregnant. How do they have to face a lot of things at the end of the day? And both sides. I think because there are, like it is, it is, it is always the men who start the fight. It is mostly the women who have to bear the consequences. So that's the same still in Aligarh, and if you Aligarh में there are, if you look at it, like sexual violence के थोड़े कम इंस्टेंसेस मिलते हैं, पर ऐसा हुआ है कि मार दिया गया है औरतों को, ऐसा तो बहुत हुआ है। छोटी-छोटी बच्ची को, एक मैंने एक इंसिडेंट लिखा है, 6 साल की बच्ची को मार दिया राइट्स में, उसको मतलब उसकी बॉडी बीच में से उसको चीर दिया, लाइक दैट आल्सो हैपेंड। एंड आई थिंक लाइक, एंड इफ यू सी इंस्टेंसेस फ्रॉम गुजरात राइट्स आल्सो, लाइक ऐसा भी हुआ था कि लाइक वहाँ पे तो काफी ज्यादा बच्चों को मारा था, बच्चियों को मारा था। So all of those things are still, that also happened in Aligarh. Uh, so I can see, like, if you look at the communal violence, the worst sufferers are the women. Zia, what were your emotions as you left Aligarh and moved to Delhi? I think when I moved to Delhi, of course, I was nostalgic. I was not saying that I did not wanted to leave Aligarh. I wanted to leave Aligarh very desperately. I wanted to, explore my horizon. I wanted to go to a new city, learn about the world. I was doing masters in journalism from Jamia Millia Islamia, which is one of the premier institutions. At that point, I wanted to remove this part of me, like, because when you grow up in a ghetto, Muslim ghetto, you want to run away from it. You want to alienate yourself from that side. तो वही वाली एक चीज है कि वो वाला जो कल्चर, जो अक्सर, जो मैं भी उन्हीं एलीट मुसलमानों में था, जो ये चाहते थे कि मेरे अंदर से ये जो जो घेटो का जो टैग है वो हट जाए। क्योंकि दैट्स हाउ पीपल मेड मी फील ऑलवेज अबाउट इट, कि अच्छा तुम वहां से आते हो, तुम वहां रहते हो, जैसे कि आप थोड़े कमतर इंसान हो अगर आप वहां से आते हो, और मतलब हम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं क्योंकि हम अच्छे इलाकों में रहते हैं। तो वो वाला एक एलिमेंट तो था, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब मोहब्बत नहीं थी। तो उस टाइम पर मुझे जाते-जाते मेरा ये था कि मुझे अपने घर की बड़ी याद आती थी, जब मैं दिल्ली गया था। क्योंकि शायद मेरा घर जैसा, जितना मैंने बताया, बड़ा-सा उसमें हवा बहुत अच्छी आती है, धूप बहुत अच्छी आती है, एक खुशगवार माहौल रहता है।
वो मुझे दिल्ली में नहीं मिल सकता था। अगर मैं बहुत ज़्यादा अमीर आदमी हो जाऊँगा, तो मैं कर सकता हूँ, वरना मैं इतना एक अच्छा घर वहाँ पे अफ़ोर्ड तो मुझे नॉस्टैल्जिया था अलीगढ़ में जाकर। पर हाँ, लाइक आई थिंक आई वांटेड टू एस्केप द ghetto. That was a predominant feeling. And of course, there too, there were the riots of 2020 after the introduction of the Citizenship Amendment Act. So, you couldn't escape that completely. Yeah, I also wanted to escape the communal violence कि भाई अलीगढ़ से तो निकल जाओ तो शायद इस जगह से तो शायद मैं बच जाऊँगा और मुझे फेस नहीं करना पड़ेगा। But when the 2022 riots happened, मैं एक locality में रह रहा था, Matanpur Khadar. It was a Hijaz-dominated locality, and when it was very close to Shaheen Bagh, and there were small incidents of violence against Muslims there in that locality also. So, like during the 2022 riots, of course, like so many people lost their lives in Northeast Delhi, 54, and most You of mean them Muslims. 2020 riots? Yeah, 2020 riots, Delhi riots. So many people lost their lives there in Delhi also. So like of course I was scared, and like ऐसा था कि हाँ भाई पहले तो ये वाली चीज़ थी कि ये सारी चीज़ें तो अलीगढ़ में होती हैं, दिल्ली में नहीं हो सकता। I was very confident, and most of the people who were living in Aligarh, journalists, academicians who I used to meet, and यार देखो हाँ, ये छोटे शहरों में ये सारी चीज़ें होती हैं, दिल्ली में नहीं हो सकता ये। But in when Donald Trump, the president of the United States, were visiting New Delhi, a few kilometers away from you, people were being butchered on the streets. Their bodies were thrown away floating in the drains. All of that happened, and like people were being burned to death by using cylinders. There was a whole militia running on the streets. Like पता नहीं वो militia कहाँ से आया लोग कहते हैं कि भाई आउटर दिल्ली से बहुत ज्यादा जो हिंदू फ्रिंज एलिमेंट्स थे वो कलेक्ट होकर वहां पर आ गए थे. It was an orchestrated thing. Most of the people who knew what was happening, journalists, say that it was a program. It was an organized thing. At the same time, I also believe that no, very few riots are spontaneous. And that's what Paul Brass and many people, those who have done studies, are most of the riots happen with the uh, connivance of the authorities. At least even in अलीगढ़ के किसी को कुछ फायदा चाहिए, किसी कम्युनिटी को सबक सिखाना है, तो चलो आओ सबक सिखाते हैं. So we will kill their children and we will burn their shops and whatever. So that keeps happening. That's the same script that I saw in Aligarh was being followed in Delhi. Like in Aligarh, like if you read the book in during the 2006 violence, so there was a violence in Aligarh in a place called Dahiwali Gali. तो वहां पर after like because there was a communal violence, एक एक तरह से spontaneous communal violence थी in which Muslim, because it was a Muslim majority area, so Muslims were more powerful. But it was not a very big violence. मतलब किसी की डेथ नहीं हुई, हाथापाई हुई, पथराव हुआ, मामला खत्म हो गया. अगले दिन जो मेरे घर में जो 5 लोगों की डेथ हुई है मेरे जो इलाके में, तो लाइक अगले दिन द militia, Hindu militia, supported by fringe groups, they came and attacked our locality. And but because it was equal fight, after then they left and police started firing on Muslims. And 5, 6 people lost their lives. One of my friends also died. So that is a script that was also being followed in Delhi. Many people who were very close to journalists who were covering, they have written about these things. Uh, and I don't know, like because so right now you cannot really trust. Whenever anybody talks about the media, I think just take it. It's an entertainment. It's infotainment. It is not information. Like ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि अखबारों में तो सच आता है. एज अ जर्नलिस्ट मैं कहूंगा कि नहीं. एज जर्नलिस्ट हु हैव बीन पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, अखबारों में तो सच नहीं आता. बहुत कम अखबारों में सच आता है. न्यूज चैनल में तो कभी ही सच नहीं आता. वो तमाशा है. तो प्लीज आप उसको सच मानना खत्म कर दें. आप उसको एंटरटेनमेंट की तरह देखें, और ना ही देखें तो मुझे लगता है कि आप यू शुड वॉच अदर
entertaining things rather than just this genocidal talk shows like Yeah. that are being organized. Then I have one last question about the book before we move on to other things. So the book could have been one of lament, but it uses humor quite effectively too. How important is it to simply survive? I see humor as the last surviving coping mechanism used by marginalized communities all across the world. Because I think humor also arises from tragedy. अगर आपने जिंदगी में अगर गम नहीं देखा होगा तो आप अच्छा मजाक भी नहीं कर सकते अगर आप शील्डेड हैं. आई वॉज ऑल्सो टॉकिंग टू somebody who was a Dalit writer, and he also said कि like there is like even Dalit communities also have a really good humor. सो बिकॉज इट इज कि अब ये वाली बात है. आप अगर कुछ आपको प्रोजेक्ट, अगर फॉर एग्जांपल अगर मीडिया मुझे प्रोजेक्ट कर रही है एज अ टेररिस्ट, तो मैं उसको, अब मैं उसको कोई प्रूव तो नहीं कर सकता. जब मुझे मान नहीं रहा तो मैं एक तंज ही तो कर सकता हूँ. है ना, कि हाँ भाई देखो मेरे, आके देखो, मतलब कहाँ भाई, कहाँ लाश पड़ी है बताओ यार, कहाँ बंदूकें कहाँ हैं. क्योंकि अगर, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, कि बिकॉज मार्जिनलाइज कम्युनिटीज अक्सर ह्यूमर को बहुत ज्यादा यूज करती हैं. और क्योंकि शायद उनकी, शायद जो गरीब लोग होते हैं, जो मार्जिनलाइज होते हैं, उनको उनकी जिंदगी में अक्सर इतनी ज्यादा सैडनेस होती है तो वो सैडनेस में बह नहीं सकते. तो जो एलीट लोग होते हैं वो अपनी सैडनेस में बह जाते हैं जब भी उनके ऊपर परेशानी आती है. वो बहुत अपने आप को विक्टिमाइज महसूस करते हैं. और जिन्होंने बचपन से ही यू नो ऐसे तंज, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस जो देखी, तो वो कहते हैं चलो ठीक है ये भी हो रहा है ना. एंड दैट इज व्हाट आई सॉ अराउंड इन माय लोकेलिटी ऑलवेज. मतलब, और समटाइम्स टू द पॉइंट ऑफ प्रॉब्लमैटिक, बीइंग प्रॉब्लमैटिक. मतलब लोगों ने नॉर्मलाइज कर लिया था, हाँ यार कोई लोग आएंगे मुसलमानों को मारेंगे चले जाएंगे तो होता ही है. तो इंस्टेड ऑफ क्या परेशान होना, तो मतलब सम अ कपल वाज किल्ड आफ्टर दे वर कमिंग फ्रॉम वाचिंग फना, एंड समबडी आई नो यू से दैट अरे देखो फना देखने गए थे, फना हो गए. एंड आई थॉट व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमर इज दिस, बट आई डोंट नो. पीपल फाइंड लाइक देयर इज, इफ यू सी इट ऑपरेस कम्युनिटी, आई थिंक दैट इज आल्सो अ पॉइंट ऑफ डिनायल, कि It's वो a पूरी survival जिन चीजों mechanism को, almost. सर्वाइवल मैकेनिज्म डिनाई भी कर देते हैं, कह रहे ऐसा कोई नहीं है. वो डिनाई करने का भी एक तरीका है, Yeah. सर्वाइव करने का भी तरीका है, एक होप पाने का भी तरीका है. ऑल्सो वी हैव टू लाइक, खासतौर पे जो मार्जिनलाइज का, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो दलित हो, they have to stick together at many points. you know they are very closely associated with each other. So in that sense वो humor वो thrive भी करता है. And if you look at stand up comedians nowadays, so agar if you have to see, the stand up comedians are more uh, more real than the news. ऐसा लगता है कि कॉमेडी शोज में ज्यादा न्यूज आ रही है, न्यूज कॉमेडी बनती जा रही है. Yeah. So you look at the Muslim stand-up comedians, there some of them are really good. Yeah. This is a good point, Ziad, to segue to the Muslim experience in India at this moment. My view is that the Indian Muslim would not have been under this much pressure since partition. What's your view? I think this is a very, very difficult time for Indian Muslims. There is no denying it. Like especially after the CNRC, when the state even tried to, uh, take away your citizenship rights, and only because women came out on the street and sat on the street, only that time that that uh, law was taken back. So like the state is trying very hard to tell you that you are not, you do not have any part of India. You are not a part of India. You do not have any stake in India. Even though my father spent is buried in Aligarh and paid all his life, paid all his taxes here, and and but still you don't have any stake in India. So that is what is. I think this is a very, and like there are many ways. There are many ways discrimination is going on. I really don't think the economic boycott of Muslims was never that strong as it is happening right now. And मतलब बहुत सारे लोग कि भाई मुस्लिम डिलीवरी वाला अगर आ गया तो मुझे उसकी डिलीवरी नहीं चाहिए, है ना, मुझे
अगर मुस्लिम ऑटो वाला आ गया तो या उबर वाला आ गया तो मैं कैंसल कर दूँगा। देयर आर पीपल who are educated, who have gone to foreign universities, who, like, have studied books and everything. They still not have been able to eradicate their hate from their hearts, and they carry it as a badge of honor. So that I find it very difficult to reconcile. Like, I don't know, like, perhaps that's what has happened, in Germany. Like, people, like, I don't understand how people who are so progressive, they can carry that hate as a badge of honor. So that is happening. So Indian Muslims at this point, I don't know. They don't have any political representation. Opposition really doesn't talk about that much. There are the courts have, like, even the Ram temple judgment. Like, it was the कि भाई conscience, collective conscience के हिसाब से ज्यादा देते हैं. And the courts have Court. been a huge disappointment in the last 10 years. I mean, even if you look Exactly. at, for example, Umar's Umar Khalid. continuous incarceration, Umar Khalid's continuous incarceration, Sharjeel Imam's continuous incarceration. But anyway, you mentioned the Yeah, political representation. we are not even second class citizen. Muslims right now are not even second class citizen. We are a third or fourth class citizens Yeah. right now. Yeah. So like Harsh Mandar talks about this concept, that eventually they are trying to make us non-human. They are dehumanizing, and eventually we will consign to the position of a non-human. कि ये तो इंसान ही नहीं है. So that is what the state is trying to do. Yeah. And the media is supporting them. I don't know, and so many educated people are supporting them. So that's where the line is going. Yeah, and you mentioned political representation. I mean, it's almost as if, and you said almost as if 200 million Muslims have no say or are made to feel as if they're not part of the country. But it's almost as if the way voting has been panning out now, it's almost as if the Muslim vote also doesn't matter anymore. They are not able to, have any political representation or very little political representation now, despite being 200 million in number in India. See, I think, yeah, like, because I think at some point, because many political, like, this is like BJP is dominating, like the opposition is only struggling hard to survive, and like even the BJP, even if they have some Muslim representation, and they have removed it slowly, gradually. All the Muslims who were in their party, even somebody like a Mukhtar Abbas Naqvi or Shahnawaz Hussain, who have been in BJP for like 2-3 decades, they really don't hold any cabinet or are not in the ministerial positions. No, They there are. is not a single elected Muslim representative in the BJP, whether you're talking about the state assemblies or whether you're talking about parliament. There isn't a single one. So, there is a strong, marginalization of Muslim politics, a very planned assault on Muslim political representation in India. And like, so the only way they can really, thrive or like come out of it is only through politics. Like, nobody really cares about you know what you say. Until unless you have some political power, you cannot really thrive. At the same time, I also find it very difficult for Muslims to have a political leadership like what Mayawati did for Dalits in UP. Like, because Dalits could still float a party, but if there is any kind of Muslim determinism, they are the popular media will count them, show them as anti-nationals. So that also happens. So like that's why Umar Khalid, anybody who tried to talk about politics, he is in jail. Asaduddin Owaisi, who still holds the only Muslim leader who still holds sway, uh, uh, you know, only because he talks very, very, he's a lawyer. He's one of the smartest politicians in India right now. He is, I always say to people that in anything, be you a writer, you might be a journalist, you might be an artist, you might be a police officer, you might be anyone. Like, as a Muslim right now, engineer, you have to be really, really better than the others if you really have to shine right.
You have to be exceptional to be accepted. तुम अगर अबुल कलाम आजाद हो तो तुम एक्सेप्टेड हो. So Asad Owaisi has won the best parliamentarian award for like continuous 3 4 years. Hannah, he understands the constitution. He only talks about the constitution. Most of the time he talks to that constitution. So I think, but at the same time, he also gets a lot of hate. You know, Yeah, it's also I and think when it comes to Owaisi, there isn't a pan-India appeal, the way let's say Kashiram would have had. But since you mentioned the Constitution makes it clear that all citizens are equal, but that's not the government's approach. Now, do you think the Constitution has been rendered irrelevant by this government? I think the spirit of the constitution has been rendered useless in the implementation, because I think it's most of the time, especially in terms of in other areas, I think it's still kicking, like now courts are giving progressive judgments about homosexuality, about gender, about women, feminism, start promoting. But when it comes to Muslims, you know, no, 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 like you're not equal. You're not among the ones who can get justice. So that is something which is happening. So I think at this point, the only thing anybody can do, constitution. So like, see, at the end of the day, it's only about the political power. If you don't have political power, any law will not be able to help you. People give too much emphasis on कि भाई ये लॉ बन गया तो एंटी रेप लॉ बन गया तो भाई रेप खत्म हो जाएंगे. I really think it's a very small, it has a very small effect on the ground. And like even the prevalence of rape, in the small towns and villages has in fact increased. You know, after some of the anti-rape laws have come. So I really don't think it is. I think it's only cultural change, it's societal change, it's political change that can really, or most importantly, economics and education, which can really change the game for Indian Muslims right now, because this is really the worst time. And if you really look at around it, like during the 80s, after the 1857 first war of independence, because it was a very very Muslim-led movement, Bahadur Shah Zafar. So like the colonial powers, they went after, पूरा जो जामा मस्जिद के बराबर का जो पूरा इलाका है, it was flattened. जो many houses were burned by the government, bulldozed कर दिए थे उसके बाद. So the state right now is using exactly the same modus operandi that the British rulers did, if you look at it. And the British also wanted to go after work, but they have a policy कि भाई हम religion से हम खेलेंगे नहीं. हम they wanted the Waqf land, but they did not want it to touch upon the religious sentiments, because that was what led to the first war of independence, because the rumor spread that it is using beef and for cartridges. So they did not want to touch religion. That's the only reason they left the land. But right now the government is doing exactly the same, while it incarcerates political prisoners, while it attacks minorities, Dalits, women at the same time. It is following the same playbook. So it is very, very difficult for the spirit of the constitution to be alive. People have to really, it is only through people, people talking, people coming out, people, talking about these things and making their voices heard, that can only change. Where do you think the Indian Muslim goes from here? I really, to be honest, like I think there is at some point, I do think, the new generation, you know, will realize, what the effect of hate on the psyche, of their children, you know, and because what is happening right now, like so like I think there is a mental health epidemic which is going on right now. I think people will at some point understand कि ये जो hate है वो उनके दिमाग पे क्या असर डाल रही है. I still really hope कि people will realize कि what a fault
कि ये इनको कहीं नहीं ले जा पाएगा. आई स्टिल बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंडिया. I still believe India will come back to its senses at some point. Uh, but right now, it's a Muslims have to be, they are attacked economically, judicially, by law enforcement. उनकी jobs जा रही हैं, like उनको political representation नहीं है. I think right now you can only rely on time, and at some point that people realize that it is impacting themselves. That is the only way. Ziad, in your book, you've written, and I quote, almost everyone has picked a country where they would run to when the inevitable happens. Some have got in touch with uncles settled in Canada, the US, Turkey, or the UK if they ever need asylum. Even someone like me who felt safe even in times of communal violence now worries about my family's future in my homeland. Stop quote. You still feel as intensely as when you wrote this? I do. I think right now it is the way Indian Muslims are consigned to a territory of being a non-human. That is still going on. Like ऐसा लगता है कि if a Muslim dies, if like 5 Muslim die, and like now it's become very very accepted part. क्या हो गया. Nobody really any shares any news right now if something like that happens. So that kind of violence has become acceptable and sometimes even celebrated. कि भाई, like if there was a mob lyncher, like state actually tried के जो like जो अखलाक के जो जिन लोगों ने लिंच करा था उनको गार्लैंड करा गया था बाकायदा. वो अपने इलाके के हीरोज की तरह उनको प्रेजेंट करा जाता है ना. बाद में like somebody like a Sadhvi Pragya who was arrested on terrorism charges, he became a member of parliament. Like, and if something like that would have happened in, let's say, Pakistan, so like people would have कि भाई ये तो देखो क्या खराब, मतलब क्या बकवास मुल्क है. But that is happening in India. Nobody really, is that much affected Well, or Sadhvi Ritambara offended. has just won a Padma Award. As we record this, the announcement Yeah, came a day or two ago. yeah. So it is very, very clear that the state, is promoting, discrimination and hate against Muslims, and will reward people, those who participate in it. And in fact, anybody who doesn't participate in it will suffer the consequences. That has happened, like even Hindus, many Hindus. और इनफैक्ट सबसे पहले तो उन्हीं को परेशान करा जाता है अगर कि भाई तुम तो हमारे खुद के ही नहीं हो, क्योंकि तुम ये वाली बात बोल रहे हो कि मुसलमानों को भी इस मुल्क में जीने का हक है ना. वो भी इंसान है. आजकल तो मुझे लगता है कि एक लाइक द बार फॉर अ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स इज सो लो कि ये वाली बात भी मुझे लगता है कुछ दिनों बाद में कहना शायद पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगी कि मुसलमान इंसान है, जानवर नहीं है. आई थिंक दैट इज हाउ द मीडिया इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट just because of their interest and money. Also nobody is, एक ये वाली बात भी है, no, most of the people don't really, अब धीरे धीरे टीवी मीडिया जिस तरह से रिडंडेंट होता जा रहा है, तो बिकॉज ओनली वेरी ओल्ड पीपल स्टिल वॉच टीवी मीडिया, तो उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो कम होता जा रहा है. So they are become more vitriolic, and that will keep happening because I think I will not be, being a journalist, I will not be shocked if at some point the Indian media start doing hit jobs, like कि like कि हाँ खुद कुछ करवा दो ताकि उनको आई बॉल्स मिल जाएं. They are so desperate right now. I will not be surprised. Mark this. This is going to happen in the next 5-10 years. I So don't yeah, know. Like, I yeah. hope this doesn't happen. So that is what is happening. So I think also people need to stop believing the media. Being a former journalist who has worked with international publications, like it is. This is the fall. Like the fall of the media is the biggest story of our time, and just Well, to it's keep an just eye one on it. amongst the many institutions that have been in decline. But Ziad, I've also felt that perhaps this dark phase is also an opportunity for Muslims. The Indian Muslim now has no option but to get more educated, get their girls fully educated, shed whatever orthodoxy there might be where it is still practiced, and so on. Do you think the same?
I do believe that they need to get themselves educated. I do believe they need to accept the changes, the technological, accept technology, accept, whatever new things are coming, in the world, and like, of course, like give more opportunities to the women students. But to be honest, I see that as happening. The kind of Muslims, like if you go to the ground, even in ghetto, in villages, I really think that kind of जो attitude है वो orthodoxy बहुत ज़्यादा कम है. अब people really want their girl child to go to the school, become doctors, like anybody else. But right now the facilities are less. तो बिकॉज़ के अब ऐसा भी हुआ है कि हिजाब पहन के तुम स्कूल नहीं जा सकते, यू नो? So in fact the state doesn't really want के them to get educated also at the same time. तो उसमें भी प्रॉब्लम जो schools नहीं है, तो वो वाली प्रॉब्लम्स है. So right now they are even among the lowest, like सबसे जो गरीब तबके में भी आप जाकर देखो, वो भी चाह रहे हैं कि उनके बच्चे और बच्चियाँ पढ़ जाएँ. पर स्कूल ही नहीं, है ना? तो फिर क्या so it is a attitudinal problem. I think I will not shy away from saying that it's a attitudinal problem, but at the same time it's a very systematic problem also. और एट द सेम टाइम मैं हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते लाइक एक इंडियन जो जनरल कॉन्शियस के हिंदू जो है वो मतलब पूजा करना छोड़ दे, एट द सेम टाइम कि आप तभी मॉडर्न हो सकते हो जब आप अपनी रिलीजियस बिलीफ्स को मानना छोड़ दो, टेम्पल में जाना छोड़ दो. क्या कहते हैं तो बट एट द सेम टाइम हिंदूज आर मेकिंग मोर टेम्पल, दे आर गोइंग टू टेम्पल्स मोर. व्हाई इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मुस्लिम्स टू बिकम लेस यू नो ऑर्थोडॉक्स, है ना? लाइक इट शुड बी इक्वल, राइट? बट एट द सेम टाइम आई डू थिंक जिस तरह का जो वक्त है, दे लाइक I really don't think, to be honest, education and everything right now doesn't change. Only political changes. Only politics can change the situation, right? I very firmly believe that. So, Ziad, what comes next for you? Another book? Of course, I am working on a lot of stories. I just my some of my short stories were published. I also do freelance journalism. I am working on another book, and that is also about marginalized communities. I think that will be about Dalits. Some story among about the Dalit community, which is unexplored. So I intend to work, write books about जो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की जो स्टोरी जो बड़ी खूबसूरत होती हैं, जो इतनी इंटरेस्टिंग होती है, जिनको बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते. लाइक आई थिंक पीपल आर नाउ टायर्ड ऑफ हियरिंग सक्सेस स्टोरीज ऑफ यू नो very rich people like Ambani. Like I think because so much has been talked about it, people are looking for small town success stories and people who are changing things. So I will focus on something like that. I will keep writing stories. को मुझे लगता है इंटरेस्टिंग भी ज्यादा जो कहानियां होती हैं वो थोड़ा सा कमजोर तबके की कहानियां जो होती हैं, थोड़ा सा ड्रामा तो ज्यादा वहीं पर होता है. What inspires you? Other writers, poetry, something else? अक्सर जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं दो चीजें जरूर करता हूँ. एक तो मैं पुरानी जो जो पोएट्स हैं, जैसे फैज अहमद फैज हुए, है ना, या फिर अहमद फराज हुए. खास तौर पे फैज अहमद फैज मुझे बहुत पसंद है. गालिब हुए. तो मुझे लगता है जो वक्त चल रहा है, तो अभी मुझे लगता है कि जो उनकी जो पोएट्री है, तो मुझे लगता है कि वक्त के साथ जैसे बीत रहा है उनकी पोएट्री और ज्यादा इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट होती जा रही है. like and that I sometimes go to them for solace. I also listen to a lot of music. I listen to Sahir Ludhianvi's old songs. I listen to modern music as well, and I do read a lot. So like I am reading a lot of books. Sometimes very different books. I read mostly for leisure. I am just reading a really beautiful book by Truman Capote. It's a crime thriller. So yeah, I find solace in cinema, music, poetry, and books. That's what I find solace right now in. So, Ziad, here's a question I ask all my guests at the end of the show. Why do you do this work? I really think the only thing that really keeps me sane right now is writing. Like the at every point in the world, like the जहाँ पे भी marginalized के पास जितनी जितनी ज्यादा उनसे पावर लेने लगोगे तो वो कुछ नहीं करेगा, तो वो अपनी एक कहानी ही बता सकता है.
तो पावरफुल के पास अपना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो 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 जिसके पास पावर नहीं होती, उसके पास बस अपनी कहानी ही होती है बताने को। तो शायद इस किताब के थ्रू भी मैंने ये करा, और अब मैं और लोगों की कहानी भी चाहता हूँ कि जो बाहर आनी चाहिए, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आई डोंट नो, आई थिंक राइटिंग मेक्स कीप्स मी सेन। I really don't think if there was writing, I would not be sane. I don't know what kind of situation I will be. It's the only way I think I can survive the world right now. Ziad, thanks so much for being on the show. Thank you so much, Ashraf. It was really nice talking to you. And maybe you want to tell readers where they can find your book. Yeah, like anybody who wants to read the book, it's called City on Fire, A Boyhood in Aligarh. It's available on Amazon and Flipkart and everywhere. You can get it from Amazon. You can get it from most of the bookstores, crossover bookstores, and more like if you are in big cities, it will be available in most of the bookstores, and you can get it from Amazon. Thanks, Ziad. Thank you so much, Ashraf. Really nice talking to you. Have a lovely day. All Indians matter.